Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 3, Dark They Were and Golden Eyed, written by Ray Bradbury. This short story, Dark They Were and Golden Eyed, is a science fiction. So the very first question that comes here is, what is science fiction? See the definition of science fiction. Science fiction is a genre of fiction in which the stories often tell about the science and technology of the future. Science fiction stories often explore how technology affects people and changes our lives. Some stories show that amazing technology still doesn't make people happy. Others show that some kinds of technology can cause problems in the world. We have seen the elements of a short story. Setting, plot and characters are the main elements of short story. These are essential ones. So, what are the elements of science fiction short stories? What is the setting in science fiction short stories? Setting is future, means time will be future time. It will predict something in future. Time travel, some sort of time travel will be there, means the characters can go into past or can go into future. Historic past, something about the past will be shown to you. Outer space means what is the place, what is the location, outer space or deep within the earth. What is the plot in science fiction short stories? Use of science and technology. Mostly use of science and technology will be there. Ray guns, teleportation machines and others. It will involve parts of science that are unrealistic. Part of it is true and part is not. Means some part will be true and some part will not be true. This will be imagination. Just imagination of the writer. What will be the characters? Mostly aliens will be there, Martians will be there, mutants who have changed completely, human robots, other futuristic beings. These will be the characters in science fiction stories. Some examples of short stories are given here. Charlie and the Great Glass Elevator by Roald Dahl. The City of Amber, a series by Jen Dupero. Mrs. Frisby and the Rats of Nim by Robert C. O'Brien. Which short story we are going to study today? Dark They Were and Golden Eyed. Here there are some pictures from science fiction short stories or science fiction movies. You can see that on another planet or some kind of moon, you can say.
These are human beings on the surface of some other planet. Okay, some introduction about the writer. Ray Bradbury was an American author. He was also a screenwriter, and he is one of the most celebrated 20th and 21st century American writers. And you know, you have been starting Dark River and Golden Eyed, that is written by Ray Bradbury. This is a science fiction. So he worked in a variety of genres including fantasy, science fiction, horror and mystery fiction. And which we are going to study, this is a science fiction, and there is a movie also on that, Dark River and Golden Eyed. These are the words of Ray Bradbury. In science fiction, we dream. It's all about dream. Science fictions are all about dream, imagination. These are also the words of Ray Bradbury. I became a writer to escape the despair of the real world and enter the world of hope I create with my imagination. So this short story is also his imagination, Ray Bradbury's imagination. In short story Dark River and Golden Eyed by Ray Bradbury, a family of 5 travel to Mars to start a new lifestyle away from danger on Earth. After building a house and getting settled, they start to notice weird things, like flowers changing their colors, food changing their tastes, cows growing a third horn, and more. They decide to live at the villa and eventually transform into Martians. This story shows the effects of the strange new surroundings on a family of travelers to Mars. It is also a suspense story. Ray Bradbury's description of Mars and the reactions to it of the Brittling family give warning that something could go wrong. The atmosphere is one of apprehension, fear and worry, and foreboding. Threatening means the atmosphere is threatening. It's all about fear and worry, means they are on the other planet Mars and its environment is totally changed, so they are feeling some sort of fear. Slowly but surely the circumstances change around Harry Bittring, who is the main character of the short story, science fiction short story. The story teaches us that people respond differently to the environments in which they find themselves. Some adapt easily to the changes, some resist changes initially and then accept them later on. And some will choose to return to the familiar environment. So different people behave differently in the changed environment. In this short story, the main characters are Harry and Cora. These are husband and wife. They are humans who travel to Mars. They bring their children Dan, Laura and David. Harry doesn't like for him and his family to change. When they start
adapting to the Martian climate, Harry freaks out. The wife and children are okay with the change, unlike Harry. Harry's friends also adapt to the climate. They also adapt to the climate. In this short story, Dark River and Golden Eyed, the main focus is on how can a new, completely different lifestyle and home change a person. You will see that this is the focused question. How can a new, completely different lifestyle and home change a person? Okay, let's read the short story. Open page number 18, all of you. The rocket metal cooled in the meadow winds. Its lid gave a bulging pop. From its clock interior stepped a man, a woman, and 3 children. The other passengers whirled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. The rocket metal, रॉकेट की धात, रॉकेट की धात इन द मिडो विंड्स, सब्ज़ार हवा में ठंडी हो गई, सब्ज़ार हवाओं में ठंडी हो गई. इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप. उसके दरवाजे ने, उसके लिड मीन्स ढक्कन, बट हेयर दरवाजे, उसके दरवाजे ने तेज उभरता हुआ खटाक किया, यानी कि खटाक की आवाज़ आई, शोर की, खटाक के शोर की आवाज़ आई. फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, और इसके कंट्रोल रूम से, क्लॉक इंटीरियर, फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, कंट्रोल रूम, डायलों और मीटरों वाला कमरा, तो इसके कंट्रोल रूम से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले. द अदर पैसेंजर्स, जो दूसरे पैसेंजर्स थे, दूसरे जो मुसाफिर थे, वर्ल्ड अवे मतलब हवा हो गए. अक्रॉस द मार्शियन विडो, मार्शियन यानी कि मरीख के सब्ज़ाज़ारों में. लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ अकेला छोड़ते हुए. द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, और आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल जो हैं वो लहरा रहे हैं. एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, और उसके बदन के जो रेशे हैं वो सख्त होते जा रहे हैं, अकड़ गए हैं. एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसा कि वो खला के वस्त में खड़ा हो, ऐसे अकड़ गए हैं उसके जो बॉडी के, जो उसके जिस्म के रेशे हैं, जो उसकी बॉडी की टिश्यूज़ हैं. हिज वाइफ बिफोर हिम, और उसकी बीवी उसके सामने. सीम्ड ऑलमोस्ट टू वर्ल्ड अवे इन स्मोक, धुएं में तकरीबन गुम होती हुई महसूस हो रही है. द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, और इसके बच्चे छोटे बीजों की तरह. माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे. बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, किसी भी लम्हे मरीख के मौसमों में छोटे छोटे बीजों की तरह बिखर सकते हैं. द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चे ऊपर मुँह उठाकर उसे देखते हैं, बच्चों ने उसे देखा. एज पीपल लुक टू द सन, कैसे देखा बच्चों ने उसे, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं. टू टेल, बताने के लिए. व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, के क्या वक्त हुआ है, कि उनकी ज़िंदगी में क्या वक्त चल रहा है. हिज फेस वाज कोल्ड,
और उसका चेहरा जो था वो जज्बात से आरी था, कोल्ड था, सर्द था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, वापस रॉकेट पर चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, क्या ज़मीन पर लौट चलें? यस लिसन, हाँ गौर से सुनो मेरी बात। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लैक अवे देयर आइडेंटिटीज़। हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे वो उनकी शनाख्त को पारा पारा कर देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, जैसे किसी भी लम्हे जो मरीख की हवा है वो उसकी रूह को खींच लेगी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे कि वाइट बोन्स में से मैरो निकाला जाता है, सफ़ेद हड्डियों में से गूदा निकलता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, ही फेल्ट submerged, submerged means sink, dip means मदगम हो जाना, किस चीज़ में डूब जाना। he felt submerged in a chemical, उसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी केमिकली मादे में या केमियाई मादे में गर्क होता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। डैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो कि उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको भी डिज़ोल्व कर लेगा, सल्व कर लेगा। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को भी जला देगा, खास्तर कर देगा, बर्न कर देगा। सो यू कैन आइडेंटिफाई इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। Setting has been introduced to you. What is the setting? Martian planet, Mars, Martian meadows, and Martian wind is there. So you can identify this is another planet, that is Mars, and they are on the Mars. And they have covered a long distance. They have moved from Earth to other planet Mars, and characters have been introduced to you: a man, a woman, and 3 children. These are the characters. They looked at Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years, कि उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा जिनको वक्त ने तोड़ फोड़ कर रख दिया था, या जो वक्त के साथ साथ ज़माने की शिकस्त व रेख्त के बाइस टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मिडोज, जो कि अपनी चरागाहों में गुम हो गए थे। lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass, जो कि लहलाती घास की झीलों में बच्चों की नर्म नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चीन अप हैरी, खुश हो जाओ हैरी। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं? हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर हॉलर्ड एट द डीप डूम ऑफ द मार्शियन स्काई। बच्चे जो हैं वो मरीख के गहरे मेहराबी आसमान के नीचे चीखो पुकार करते हुए फिर रहे हैं अपने जर्द बालों के साथ। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं मिलता उन्हें। बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड, सिर्फ क्या है कि हवा की तेज़ सनसनाहट वो सुन पाते हैं। थ्रू द स्टिफ ग्रास, जो कि सख्त अकड़ी हुई घास में से
उस सख्त अकड़ी हुई घास में से जब गुज़रती है तो फिर वो जो आवाज़ आती है, वो सनसनाहट की जो आवाज़ आती है तेज़, वो बस वो महसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, वो अपने सामान को अपने सर्द हाथों में उठाता है। हेयर वी गो, यहाँ हमें जाना है। ही सेड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, उसने ऐसे आदमी की तरह कहा जो कि किसी समंदर के किनारे, रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउन, जो कि किसी समंदर के किनारे खड़ा हो और समंदर के पानी में से चलकर गुज़रने और डूबने के लिए, वेड इन गुज़रने और बी ड्राउन डूबने के लिए तैयार हो। दे वॉकड इन टू टाउन, वो चलते चलते टाउन तक पहुंच जाते हैं। चलते चलते उस टाउन को आप कस्बा भी कह सकते हैं, उस कस्बे में पहुंच गए, ये शहर में पहुंच गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, अब उनके नेम्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्या नेम है? बिटरिंग। देयर नेम्स वर बिटरिंग मीन्स दे आर ऑफ बिटरिंग फैमिली। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, उस मैन का नाम क्या है? हैरी, और वुमेन कोरा, एंड देयर चिल्ड्रन डैन, लोरा एंड डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, अब वो वहाँ उन्होंने क्या बना लिया? एक छोटी सी सफ़ेद कुटिया बना ली, कॉटेज। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ उन्होंने अच्छे तरीके से नाश्ता किया। बट द फियर वाज नेवर गोन, लेकिन जो उनका खौफ था वो ना जा सका। इट ले विद मिस्टर एंड मिसिज बिटरिंग, और वो मिस्टर और मिसिज बिटरिंग के साथ ही रहा, बिल्कुल ऐसे अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, जैसे कि एक तीसरा बिन बुलाया मेहमान हो, तीसरा बिन बुलाया साथी हो। वो खौफ ऐसे उनके साथ मुसल्लत रहा, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जब भी वो आधी रात के वक्त बातचीत करते। एट एवरी डॉन, या फिर दिन में वो गुफ्तगू करते, या फिर रात में, तो वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके साथ रहता वो खौफ। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं साल्ट क्रिस्टल हूँ, कि नमक की कलम की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम के किसी पहाड़ी नदी में, बीइंग वॉश्ड अवे, घुल रहा हूँ, कि मुझे ऐसा महसूस होता है मैं एक नमक की कलम हूँ और मैं किसी पहाड़ी नदी में बीइंग वॉश्ड अवे घुल रहा हूँ। वी डोंट बिलोंग हेयर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के रहने वाले लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, कि ये मरीख लोगों के लिए है, मरीख के रहने वालों के लिए है। फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए। कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, चलो घर के लिए टिकट खरीदें। बट शी ओनली शॉक हर हेड, लेकिन वो सिर्फ अपना नफ़ी में सर हिलाती है, उसने नफ़ी में सर हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बॉम्ब जो है ज़मीन को मज़ा चिखाएगा। देन वी विल बी सेफ हेयर, फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, कि हम महफूज तो होंगे लेकिन साथ साथ क्या है, इनसेन हो जाएंगे। इनसेन मीन्स पागल, दीवाने, फूलिश, मैड, क्रेजी, नॉनसेंस। लघु बात, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ विंडोज़, कि मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर की तरफ देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, कि हम बहुत साफ़ सुथरे
और नफीस लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन दैम, जितने भी मुर्दा शहर हैं या उजड़े हुए शहर हैं वो क्या है, उसमें किसी न किसी किस्म के भूत प्रेत मौजूद होंगे। मेमोरीज, यादें, आई मीन। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों को घूरा। यू सी अ स्टेयरकेस एंड यू वॉन्डर, कि तुम एक सीढ़ी देखते हो और सोचते हो और हैरान होते हो। व्हाट द मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मार्शियन कैसे दिखाई देते होंगे जब वो इस पर चढ़ते होंगे। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, कि आप मार्शियन पेंटिंग्स को देखते हो, मरीख के लोगों की जो बनाई हुई तस्वीर हैं उनको देखते हो। एंड यू वॉन्डर, और सोचते हो, हैरान होते हो। व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि तस्वीर बनाने वाला जो मुसव्विर होगा वो कैसा दिखाई देता होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, आप अपने जहन में क्या है, एक ख्याली तसव्वुर कायम कर लेते हो, कि एक भूत, छोटा सा भूत अपने माइंड में बना लेते हो, ख्याली तसव्वुर उस भूत का। अब मेमोरी, एक याद के तौर पे। इट्स क्वाइट नेचुरल, कि ये बिल्कुल कुदरती बात है। इमेजिनेशन, और ये हमारे तख़य्युल का हिस्सा है। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवेंट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रूम्स, के तुम इन खंडरात में कहीं चोरी छुपे इधर उधर तो नहीं फिरते रहे हो। हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो। प्रॉलिंग अप मीन्स चोरी छुपे इधर उधर फिरना। नो पापा, नहीं, नहीं अबू। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी डैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, और इस बात का ख्याल रखो कि तुम इनसे दूर रहो। पास द जैम, मुझे जैम पास करो, ये जैम दो। जस्ट द सेम, जस्ट द सेम मीन्स ऐसा ही होगा। सैड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, कि मुझे यकीन है कि कोई ना कोई वाक़या पेश आएगा, या मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होना है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, और फिर कुछ हो जाता है उसी दोपहर में, और उसी दोपहर में एक वाक़या पेश आया। अब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इससे आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ तक जितने भी मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनको देख लेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आप उनके सिनोनिम्स भी याद कर लें। हम कल चैप्टर आगे शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।